So what we were discussing is, can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. All right. So सबसे पहले, first of all, we have this definition of what is a linearly independent set of vectors in a vector space. So let V be a vector space, and let S, V1, V2, Vn be a finite set of vectors in V. Then we say that this set of vectors V1, V2, Vn is a linearly independent set of vectors. This set of n vectors is a linearly independent set of n vectors if whenever a linear combination of these n vectors is zero, whenever a linear combination of these n vectors is zero, then all the scalars must be zero. जब भी इन n vectors का एक linear combination equal to zero हो, whenever a linear combination of v1, v2, vn is zero, तब सारे scalars को zero होना पड़ेगा. Then all the scalars must be zero. अगर ऐसा हो, then we say that the vectors are linearly independent. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. So hence, a set of vectors, v1, v2, vn in a vector space V over F, in a vector space V over the field F, is said to form a linearly independent set. If what happens if A1 V1 A2 V2 plus AN Vn equal to zero vector, implies that the scalars are all zero. Okay, the scalars are all zero. So अब ये तो हमने linearly independent set की definition किया. ऐसे हमारे पास अब definition है linearly dependent set की. All right. So a set of vectors, a finite set of vectors. All right. A finite set of vectors V1, V2, V3, Vn is said to be a linearly dependent. पहले तो linearly independent कहा था, अब linearly dependent बता रहे हैं. Linearly dependent कब होता है? Is said to be a linearly dependent set if this set is not linearly independent. अगर ये set linearly independent ना हो, is not linearly independent. ठीक है? जो सेट linearly independent नहीं होता उसको linearly dependent बोलते हैं. क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो लेकिन हमने इसको linearly dependent को ऐसे नहीं हम कहेंगे कि जो linearly independent नहीं होता उसको linearly dependent बोलते हैं. तो हम इसको properly define करेंगे. All right. Hence, a set of vectors V1, V2, V3 in a vector space V over the field F is a linearly dependent set. Linearly dependent को short में ऐसे लिख देते हैं. LD is said to be a linearly dependent set. अगर क्या हो जाए? अगर वो linearly independent ना हो. अगर वो linearly independent ना हो. ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. लेकिन कोई सेट linearly independent होता कब है? कोई set of vectors linearly independent तब होता है if whenever a linear combination of these vectors is zero, then all the scalars must be zero. Linearly independent तो तब होता है. All right. तो ये set of vectors linearly independent नहीं है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है
कि आपके पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन v1 v2 vn का 0 होगा वेयर ऑल द स्केलर्स आर नॉट 0, जहां पे सारे स्केलर्स 0 नहीं है। समझ आ गई बात? यही तो मतलब निकलेगा ना नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट का। नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये निकलेगा कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन v1 v2 vn का ऐसा है जो कि 0 है, और उस लीनियर कॉम्बिनेशन में ऑल स्केलर्स 0 नहीं है। ठीक है, देयर आर स्केलर्स, ठीक है, विच आर नॉट ऑल 0। सो इफ, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, if there exist scalars a1 a2 a3 an and these scalars are not all 0, not all 0, ये स्केलर सारे के सारे 0 नहीं है। सारे के सारे 0 नहीं होने का मतलब इनमें कम से कम एक नॉन जीरो स्केलर है। ठीक है, सारे के सारे 0 नहीं होने का मतलब इनमें कम से कम एक नॉन जीरो है। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an such that a1 v1 plus a2 v2 plus an vn is equal to 0। ये डेफिनेशन होगी लीनियरली डिपेंडेंट सेट की। दिस डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट। बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। हाँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स किसको बोलते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, एक सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट तब बोलते हैं इफ whenever a linear combination of these n vectors is 0 then all the scalars must be 0। और एक सेट को लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे? एक सेट को लीनियरली डिपेंडेंट तब बोलते हैं अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट ना होने का मतलब a set of vectors v1 v2 vn is said to be linearly dependent if, अगर आपके पास एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन हो उन n वेक्टर्स का जो कि 0 हो और जहां पे सारे स्केलर्स 0 ना हो। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an not all 0 such that the linear combination of these vectors with a1 a2 an is 0। क्लियर है? यस सर। तो ये डेफिनेशंस हैं इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी ज्यादा यूज होती है, तो एक बार फाइनली मैं इनको फिर यहाँ पे लिखूंगा। ए सेट ऑफ वेक्टर्स, अब आप बताओगे ए सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn in a vector space v over f is said to be linearly dependent, linearly dependent, अगर क्या हो जाए बताओ? If linear combination is 0 no, but no, no, not no, all. no, हाँ, if there exist scalars, if there exist scalars a1 a2 a3 an and these scalars are not all 0, ये स्केलर सारे के सारे 0 नहीं है। if there is scalars a1 a2 an not all 0 such that what, such that इनके साथ जो v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन है इन स्केलर्स के साथ, वो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। ठीक है, जब ऐसा हो जाए तब हम बोलते हैं दैट दिस सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ऐसे नॉट ऑल 0 स्केलर्स एग्जिस्ट करें, ऐसे स्केलर एग्जिस्ट करें जो कि सारे के सारे 0 नहीं है लेकिन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन v1 v2 vn के साथ 0 है, तब हम बोलते हैं दिस सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। ऑलराइट, ठीक है। and a set of vectors, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जहां पे लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट चेक करेंगे इस सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। A set of vectors v1 v2 vn is said to be linearly independent, linearly independent if, अगर वो linearly dependent ना हो। linearly dependent तब होते हैं जब ऐसे स्केलर एग्जिस्ट करें
which are not all zero but their linear combination is zero. तो linearly independent कब होंगे? कि अगर आपके पास अगर linearly जब भी आपके पास इन n वेक्टर्स का linear combination zero है तो फिर वो सारे वेक्टर्स जो हैं उनमें कोई वेक्टर फिर नॉन जीरो नहीं हो सकता. ठीक है. If a1 v1 plus a2 b2 plus an vn is equal to 0, this implies that all the scalars have to be 0. ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ स्केलर्स नॉन जीरो हो, कोई स्केलर्स नॉन जीरो हो और ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी जीरो हो जाए. वो तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट में होता है ना, वो तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट के लिए होता है. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो है फिर सारे स्केलर्स वो जीरो होना पड़ेगा. ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है? यस सर. रिमार्क ये है कि जब भी आपको किसी सेट को आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना हो, टू प्रूव ए सेट, मान लो आपके पास v1 या u1 u2 u3 un टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर आपको किसी सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना हो देन वी टेक a linear combination of these vectors, put it equal to 0 and try to prove that all the scalars are 0. तो एक linear combination लिख लेते हैं सारे vectors का equal to 0 और फिर प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि सारे स्केलर 0 हैं. अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर सेट प्रूव हो जाता है कि सेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है. क्लियर है ये रिमार्क? क्लियर है बेटा? यस सर. डेफिनेशन इतनी ज्यादा जरूरी हैं ये समझनी और आनी, इसलिए मैंने बार बार इनको बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. एक बार से फिर आप देख लीजिए इस पेज को, ऑलराइट, और समझ लीजिए डेफिनेशन. देन वी विल स्टार्ट डूइंग सम एग्जांपल्स. ठीक है बेटा, क्लियर है सब? शैल वी मूव ऑन टू द एग्जांपल्स. एग्जांपल्स करें जहां पे आपको चेक करना है कोई वेक्टर्स. तो वी हैव एग्जांपल्स हियर.
बेटा क्लास में टाइम पे एंटर हो जाया करो, आप इतना बीच में डिस्टरबेंस होती है सबको, ठीक है ना, एंट्री वगैरह देने में, ठीक है। 11:20 पे टाइम था क्लास का, तो 11:30 तक, तो 11:25 तक डेफिनेटली एंटर हो जाए, 5-1 मिनट बहुत होते हैं, ऐसे तो फिर बहुत डिस्टर्बेंस होती है। एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, कंसिडर द वेक्टर स्पेस, कंसिडर द वेक्टर स्पेस R3 over R, ठीक है। R3 is a vector space over the field of real numbers, ठीक है। तो consider the set and determine whether this set, okay, whether this set of vectors, ये 3 वेक्टर्स का सेट है, 1 1 1 ये एक वेक्टर है R3 में, 1 2 3 ये दूसरा वेक्टर है R3 में, ठीक है, दूसरा एलिमेंट है R3 का, और तीसरा एलिमेंट है इस वेक्टर स्पेस का हमने लिया है 0 1 2, ठीक है ना। R3 के एलिमेंट किस टाइप के हैं? R3 के एलिमेंट होते हैं इस टाइप के, x1 x2 x3, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं ना R3 के, वेयर ईच xi इज ए रियल नंबर, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं R3 के। इट इज इजी टू सी दैट R3 ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये तो आसान है चेक करना कि R3 ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस, ये तो क्लियर है ना। तो R3 ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस, इस वेक्टर स्पेस में हमने ये सेट ले लिया S, ये सेट ले लिया S, ऑलराइट। तो इस सेट S को हमें चेक करना है वेदर दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। हमें ये देखना है कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, क्लियर है, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो इसको चेक करने के लिए अब ये बताओ कि ये कैसे चेक करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। सॉल्यूशन इसका हम ऐसे करते हैं कि लेट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स a1 1 प्लस b इंटू 1 2 3 प्लस c इंटू 0 1 2, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर इन R3, R3 में 0 वेक्टर क्या है 0 0 0, दिस इज द 0 वेक्टर इन R3, ठीक है। लेट दिस बी इक्वल टू दिस, तो हम अगर तो यहां से ये प्रूव कर दें कि A B C जो तीनों को 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ दैट A B and C ऑल दीज 3 स्केलर हैव टू बी 0, तब तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तब तो इन 3 वेक्टर्स का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, देन S वुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर हम ये कहें कि इट इज पॉसिबल कि A B C तीनों 0 ना हो, ऑलराइट, ऑल 3 आर नॉट 0, इनमें से कम एक नॉन जीरो भी हो सकता है, तब भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रह सकता है, तब ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ऑलराइट। इज दिस क्लियर? सो Yes, sir. दिस इंप्लाइज ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो जब आप, प्लस बी 2b 3b प्लस 0c 2c इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है ना। हम ए बी सी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड ए बी एंड सी फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो दिस इंप्लाइज a plus b and a plus 2b plus c and a plus 3b plus 2c, this is equal to 0 0 0, that implies a plus b is equal to 0 and a plus 2b plus c is equal to 0 and a plus
3b plus 2c is equal to 0. ऑलराइट, ठीक है। या इन इक्वेशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a plus b plus 0c is equal to 0 and a plus 2b plus c is equal to 0 and a plus 3b plus 2c is equal to 0. तो इन तीन इक्वेशन से हम अगर हम सोल्यूशन फाइंड आउट करें, इफ वी फाइंड a b एंड c, अगर हम आप a b और c फाइंड आउट करो और आंसर आए कि a और b और c तीनों को 0 होना पड़ेगा, a is 0, b is 0, c is 0, सिर्फ एक ही सोल्यूशन आए a equal to 0, b equal to 0, c equal to 0, तब तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, देन द सेट S is लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन आए जिसमें a b c तीनों 0 नहीं है, ठीक है, ऑल द स्केलर्स आर नॉट 0, फिर दैट मींस ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऑलराइट, तो अब आप ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट देम इन मैट्रिक्स फॉर्म लाइक दिस 1 1 0 और 2 1 3 2. This matrix multiplied by the matrix ABC is equal to the 0 matrix. ठीक है, ये मैट्रिक्स इस टाइप की, ये इक्वेशन इस टाइप की बन गई, AX is equal to B, where A is, this equation is of the type AX is equal to B, where B is this matrix, X is this matrix and A is this matrix. ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर आप लिखो तो आपको फाइंड आउट करना है X, राइट। तो X जो है ये हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल हो तो X is equal to 0 is the only solution. X equal to 0 is the only solution if and only if the determinant of if and only if A is invertible. चलो मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये X is equal to B इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये X फाइंड आउट करना है। X का मतलब ये ABC फाइंड आउट करने है ना, ABC फाइंड आउट करने का मतलब आपको ये मैट्रिक्स X फाइंड आउट करनी है। तो X कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों तरफ A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ A इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे X फाइंड आउट होएगी ना। तो ये अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा तभी तो यूनिक वैल्यू आएगी X आपके पास ABC की, ठीक है। तो A इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो, राइट। और B है आपके पास जीरो मैट्रिक्स, तो आपके पास A इनवर्स इनटू जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन आएगा, राइट। जीरो सॉल्यूशन आएगा इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, ऑलराइट, ऑलराइट। हेंस X equal to 0 is the only solution if the determinant of A is not equal to 0, अगर A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अब A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देख लो आप, A का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है 1 1 0 1 2 1 and 1 3 2, ऑलराइट। ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट देखो कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप पहली रो को यूज करके फाइंड आउट करो, फर्स्ट रो को यूज करके अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो तो ये आएगा 1 into 4 minus 3, ऑलराइट, minus 1 into 2 minus 1. This comes out to be equal to 0. Okay, this comes out to be equal to 0. तो ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती, A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब X इक्वल टू 0 इसका ओनली सोल्यूशन नहीं है, ऑलराइट। दिस इंप्लाइज, राइट, so determinant of A is equal to 0, this implies X equal to
the system has non-trivial solutions. X equal to 0 is not the only solution. Not the only solution. ठीक है? So this implies this system of equations Ax equal to B has a non-zero solution. Has a non-zero या non-trivial solution. जीरो सोल्यूशन को ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं. तो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा. इसका मतलब x का जीरो होना जरूरी नहीं है. x का जीरो होने का जरूरी नहीं का मतलब a b c तीनों का जीरो होना जरूरी नहीं है, तब भी इस इक्वेशन सॉल्वेबल है. तब भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. a b c की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो वेयर a b c तीनों का जीरो होना जरूरी नहीं है. और a b c अगर तीनों का जीरो होना जरूरी नहीं है तो फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो है वेयर ए बी सी आर नॉट ऑल जीरो. तो फिर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ना. दैट मींस दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट. ऑलराइट, दिस इंप्लाइज द सेट S इज लीनियरली डिपेंडेंट. आप बताओ, आपको समझ आया कि नहीं? आ गया सर. ऐसा किया हमने. क्या प्रूव करना था हमें? हमें ये प्रूव करना था ये जो गिवन सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट तब होता है अगर आप इन थ्री वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो पुट करो और आपके पास ए बी सी की ऐसी वैल्यूज आ जाए जो कि तीनों की तीनों जीरो नहीं है. तो अगर ए बी सी की तीनों की ऐसी वैल्यू आ जाए जो तीनों की जो ए बी सी तीनों की तीनों जीरो नहीं है, तब ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, नहीं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. अगर ए बी सी की तीनों वैल्यू जीरो हो तब ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. तो हमने इस सिस्टम को जब सॉल्व इसको ओपन किया तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ गई, दीज थ्री इक्वेशंस. इन तीन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन आ गई ए एक्स, ठीक है, इक्वल टू बी. ये आपके पास ए हो गई, ये मैट्रिक्स एक्स हो गई और ये मैट्रिक्स बी हो गई. एक्स मैट्रिक्स क्या है? ए बी सी. तो आपको मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करनी है. अब ए एक्स इक्वल टू बी से एक्स मैट्रिक्स आएगी ए इनवर्स इनटू बी करके. ठीक है ना. तो ए इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करता है जब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो. तो अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए इनवर्स इनटू बी, बी है जीरो मैट्रिक्स, तो और ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी. तो एक्स इक्वल टू जीरो सोल्यूशन आ जाएगा. एक्स इक्वल टू जीरो सोल्यूशन आने का मतलब ए भी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो. तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो सोल्यूशन तभी आएगा जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो. ठीक है, लेकिन हमने इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया ए का तो वो आ गया जीरो, वो तो नॉन जीरो नहीं है. तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती. ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती तो जीरो इज नॉट द ओनली सोल्यूशन. तो जीरो सोल्यूशन ओनली सोल्यूशन नहीं है. इसका मतलब ए बी सी तीनों को जीरो होना जरूरी नहीं है, तब भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है जो आप गिवन है. तो हेंस दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट. समझ आ गई आपको? समझ आ गया कि नहीं बेटा? Yes, sir. लेकिन हमारे पास एक और भी इजी मेथड है इसकी लीनियरली डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस चेक करने का. ये मेथड तो थोड़ा सा लग रहा है डिफिकल्ट, लग रहा है ऐसे दिखने में. इसमें काफी काम करना पड़ रहा है, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही हैं. लेकिन हमारे पास एक बहुत ही आसान मेथड है चेक करने का कि किसी सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट देखना हो या लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ये देखना हो, तो उसको चेक करने का बहुत ही आसान मेथड है. वो आसान मेथड है यूजिंग द रो एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड यूजिंग द रैंक ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स का रैंक और रो एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करके उसका रैंक इजीली चेक हो जाता है, उसका लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंस. तो वो मेथड हम कल डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही आसान मेथड है ये चेक करने के लिए कि कोई सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है. इज दिस क्लियर? So tomorrow we will do a very easy method of checking whether a set of vectors is linearly independent or not. Is this clear? Yes. ठीक है, तो अभी आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में
आप अपने जो हैं ईमेल्स लिखिए प्लीज, राइट योर ईमेल्स इन द चैट बॉक्स। ठीक है बेटा। सर ये ईमेल से कनेक्ट नहीं हुई शायद ये माइक्रोसॉफ्ट वाली। ये आपने माइक्रोसॉफ्ट ये टीम्स तो डाउनलोड कर ली होगी ना? यस सर। टीम्स तो Yes. डाउनलोड कर ली। तो अब आप ऐसे कर लो, आप सारे Yes, अपनी sir. ईमेल लिख दो चैट बॉक्स पे। उस ईमेल से मैं आपको आपकी जो मीटिंग को ज्वाइन करने का इनविटेशन होगा ना, वो आपकी टीम्स की ऐप में आ जाएगा अपने आप। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आना पड़ेगा मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना? जो आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की ऐप है, उस ऐप में ही आपके पास लिंक होगा मीटिंग ज्वाइन करने का, डेली जब आया करेगा। इज दिस क्लियर? और लिंक को क्लिक करके आप एकदम से ज्वाइन कर जाओगे आप, ठीक है? अभी तो क्या करना पड़ता है, हम वहाँ व्हाट्सएप पे पेस्ट करते हैं उसको, लिंक को। तो प्लीज राइट योर और फिर उसका और भी बहुत फायदे हैं। जो भी मटेरियल वगैरह जो भी आपके ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे वहाँ पे। एक मैं आपको ऐड कर दूंगा, एक उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम का ग्रुप है बीएससी फर्स्ट ईयर का, ऑलराइट, बीएससी फाइनल ईयर का, सॉरी। ओके। एक्चुअली में सर इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा सर वो चैट पे। वो आपको पता चल जाएगा अभी, जब आपको मिलेगा सब कुछ पता चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो आपने डाउनलोड कर लिया ना, कल से आपको लिंक वहीं आएगा। आप अभी आप चैट बॉक्स में आपने सबने अपने ईमेल सर- एड्रेसेस लिख दिए? सर मैं चैट बॉक्स और कहीं सर आप ही कहाँ मिलेगा चैट बॉक्स? सर चैट बॉक्स का आप- ऑप्शन नहीं आ रहा है अब। आप ऐसे करना फिर, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ना, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नाम, रोल नंबर और ईमेल एड्रेस वो लिख के पोस्ट कर दो। थर्ड ईयर का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से ले लूंगा मैं, ठीक है? ऐसे सर सेंड वहाँ कर तो सकते हैं एडमिन्स वहाँ पे। मैसेज कर सकते हैं ओनली। अंदर अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो बेटा, वहां से ले लो। Only admins can send messages हैं? to the group. एडमिन सेंड कर एडमिन सकते कर हैं सकते हैं सर। सर। अच्छा, वो मैं कर देता हूँ, उसको ओपन कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक। तो आप अपना रोल नंबर और अपना नाम, रोल नंबर और ईमेल एड्रेस उस पे लिख देना, ऑलराइट? ओके सर। ओके, वी एंड द मीटिंग नाउ।